Morning friends. Today topic is task management. Task. What is meant by task? Task is a particular function that given to RTOS that performing the operation. Okay. Task is a task is given to RTOS. RTOS means real time operating system. In real time operating system, a particular task is given for performing so the operation, so it is called as the task. Okay, the main function of task management includes the scheduling of multiple tasks. Okay, whenever you give any task, okay, suppose you want to withdraw the money from ATM card. Okay, so you put up the amount and withdraw this money. So this is called as the task. Okay, and this task is always given by to RTOS. RTOS this perform the particular task. Okay, so scheduler multiple tasks. So multiple people want to withdrawing the money. So this is called the multiple task. Okay, in task object. Okay, whenever the particular object is performed by RTOS, so this is called as task object or entity. Okay, so entity uh, this entity or task performed object is maintained by scheduler and dispatch maintains. Okay, this mechanism consists of scheduler and dispatcher that create and maintain task object. It maintain task object scheduler and dispatch maintenance. Okay, so this maintain मेन टास्क ऑब्जेक्ट. ओके, जो भी टास्क ऑब्जेक्ट है उसको ये दो चीज़ें क्या करती है, मेंटेन करती है. ओके, अब ये जो टास्क है, इन दिस टास्क देर आर थ्री बेसिक यूनिट. ओके, फर्स्ट इज रिलीज टाइम, डेडलाइन एंड एग्जीक्यूशन टाइम. ओके, रिलीज टाइम, डेडलाइन एंड एग्जीक्यूशन टाइम. ओके, in what happen in actual release time is a time taken which task to be exit. Release time means this is the main time at which task to be executed. Okay, the another is deadline. It is a deadline at which task to be complete. Deadline means it is a time at which particular task to be complete. So this is called as the deadline. Okay, this is the release time. Task executed, complete. Okay, then execution time. Okay, it is a time taken to execute. Execute को जो टाइम लगता है उस टाइम को बोले एग्जीक्यूट टाइम. डेडलाइन मीन्स कंप्लीटेशन, जो टास्क कंप्लीट हो रहा है बोले डेडलाइन. रिलीज टाइम मतलब टास्क इज एग्जीक्यूटेड. ओके, अ टाइम विच टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, release time, deadline and execution time. Okay, release time is a time from which task can be exit. Task can be not like tentative, can be, it is execute. Okay, so you think that it is a similar, not similar, it is can be or it is execute. Okay, then task having four main state. This state is called as running state, ready state. Okay, then ideal state and block state. Okay, what is mean by running state? A state that denote microcontroller is executing the task. A state which denote microcontroller executing the task. This is called a running state. Okay, this is running state. In this state, execution of task is in प्रोग्रेस विथ ऑल नेसेसरी सिस्टम रिसोर्सेस. ओके, ये जो टास्क में जो माइक्रो कंट्रोलर रहता है वो सभी टास्क एग्जीक्यूट करता है विथ नेसेसरी रिसोर्सेस का यूज़ करके. ओके, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो रहते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस. अब व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? आप जो माइक्रो कंट्रोलर में आप एलईडी कनेक्ट करते हो, मोटर कनेक्ट करते हो या कोई भी एलसीडी डिस्प्ले कनेक्ट करते हो, तो दिस इज आउटपुट डिवाइस. ओके, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये अलग अलग होती है कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर्स में. ऐसा समझो, माइक्रो कंट्रोलर मतलब क्या है, ऑन चिप मेमोरी. ओके, ऑन चिप मेमोरी, चिप के ऊपर मेमोरी रहता है. माइक्रो कंट्रोलर इट इज़ अ RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड और यूर कंप्यूटर इज GTOS, जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो दिस इज दी मेन डिफरेंस. सो रनिंग स्टेट में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, जो भी टास्क दिया है, क्रिएटेड टास्क,
उसको क्या करता है, नेसेसरी रिसोर्स के साथ रन करता है, उसको बोलते हैं रनिंग स्टेट। अनदर इज रेडी स्टेट। ओके, रेडी स्टेट में क्या होता है, अ स्टेट डिनोट द वेटिंग फॉर अदर हायर प्रायोरिटी टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड। ओके, इस स्टेट में क्या होता है, जो भी हायर प्रायोरिटी के टास्क रहती है, मैंने जैसे कल आपको एग्जांपल दिया था कि प्रिंसिपल का और प्यून का, ओके, उसको बोलते हैं हायर प्रायोरिटी। प्रिंसिपल जो रहता है हायर प्रायोरिटी पर्सन रहता है, और जो प्यून रहता है लोअर प्रायोरिटी पर्सन रहता है। मतलब आप जो भी प्रिंसिपल को कुछ दिक्कत है, आप सब काम छोड़ के प्रिंसिपल की दिक्कत से सॉल्व करते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं हाई प्रायोरिटी। जैसे आप क्या करते हो कि आपके दोस्त ने आपको कुछ काम दिया है, लेकिन उसी टाइम में आपको एक टीचर ने काम दिया है, तो आप दोस्त का काम छोड़ के टीचर का काम पहले करोगे, बिकॉज टीचर हैविंग हाई प्रायोरिटी। ओके, तो जो भी टास्क दिया है, तो वैसे जो उसको बोलते हैं हाई प्रायोरिटी, उसको क्या बोलते हैं, हायर प्रायोरिटी। ओके, तो माइक्रो कंट्रोल में आपने सीखा होगा INT0, INT1, जो 4 पिन्स थी प्रायोरिटी पिन्स, उसमें से INT0 हायर प्रायोरिटी पिन्स रहती है। तो वो जो हायर प्रायोरिटी की जो टास्क रहती है, वो रेडी स्टेट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ओके, देन आइडियल। ओके, द स्टेट टास्क क्रिएट बट नॉट एक्टिवेटेड। इस स्टेट में क्या होता है, टास्क क्रिएट हो जाता है लेकिन एक्टिवेट नहीं होता है, इसको बोलते हैं आइडियल स्टेट। इन दिस ब्लॉक स्टेट, इट डिनोट टास्क इज वेटिंग फॉर एक्सटर्नल इवेंट। जो भी एक्सटर्नल इवेंट आपने टास्क में दिया है, वो एक्सटर्नल इवेंट ब्लॉक स्टेट क्या करता है, उसको एक्सटर्नल वेटिंग करता है। ओके, तो आपको होमवर्क ये है कि चारों जो स्टेट है, चारों स्टेट के बारे में आप अपने लैंग्वेज में पॉइंट वाइज लिखो, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, अनदर इज, सो अपन ने क्या, व्हाट वी सी टुडे, स्टेट ऑफ टास्क। ओके, there are 4 state of task: ideal state, ready state, running state and execute state. State of task, 4 state of task: ideal, ready, running and block. ओके, सो ये हो गया अभी टास्क के बारे में। टास्क मतलब क्या है कि जो भी आपने माइक्रो कंट्रोलर को जो भी आपने परफॉर्मेंस दिया है, क्या टास्क दी है, जो भी माइक्रो कंट्रोलर को जो टास्क दिया है, वो परफॉर्म करने को जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं टास्क। माइक्रो कंट्रोलर को जो अपने ऑब्जेक्ट दिया है परफॉर्मेंस करने के लिए, उसको बोलते हैं टास्क। ओके, आपको LED ऑन करना है, माइक्रो कंट्रोलर पे LED ऑफ करना है, मोटर ऑन करनी है, मोटर ऑफ करनी है, मोटर क्लॉकवाइज फिराने के, एंटर क्लॉकवाइज फिराने के, तो इस जो स्टेट के बोलते हैं क्लॉक, इस स्टेट के बोलते हैं टास्क। ओके, और क्लॉक सिग्नल लगता है उसके लिए। ओके, तो दिस अबाउट दी योर टॉपिक टास्क मैनेजमेंट, and in next lecture we can see that your next topic is interstate communication. Okay, thank you.